हैं? क्या हो रहा है?
Today, in the class of the intellectual property rights, we have completed the complete syllabus of the unit first, unit second, unit third, and unit 4 and unit 5. We have already completed throughout the syllabus. And if any student have any doubt, then you can question me, and you can ask which topic is not completed and which topic is how much far extent it get completed. And today we'll go for the assignment. The date for the submission of the assignment is already given to the students, and college have already given the mark that the assignment must be submitted and the marks to be added in the final marks. Hence, it is compulsory for all students to submit the assignments. So, assignment first of the unit first, describe concept of intellectual property, describe kinds of intellectual property, explain economic importance of the intellectual property, explain constitutional aspects of property, explain constitutional protection of property and intellectual property, explain economic development and intellectual property right protection. These are the 6 questions are given in the assignment first of the unit first. The 6 questions are given, and you have to make the solution of these 6 solution. Now we'll take care about the what is the syllabus of the intellectual property rights. Code number OAC first, and total number of credits is 3. Total lecture 3, tutorial 0, practical 0, total lecture hours 3. However, we are taking 4 lectures per week. The 3 lecture per week is assigned by the university, and we are taking the 4 lectures, more than university norms, you can say. The sessional marks is for 25, and which is dependent upon the assignment and MCQ test, which have been declared by the college, and attendance. Theory marks is the 75 marks. Major portion of the marks is with the theory, hence the theory must to be get completed, and the total marks is 400 marks, and duration of the exams will be 3 hours. And unit 1 syllabus, introduction to the intellectual property. What is the intellectual property? Concept of the intellectual property, kinds of intellectual property, economic importance of the intellectual property, Indian theory on private property, constitutional aspects of the property, constitutional protection of property and intellectual property, economic development and intellectual property right protection. This is the syllabus of the unit first, and this syllabus have been already been get completed, and we are happy to complete. शेखर जी, आवाज आ रही है हमारी? आकाश पवार जी, आवाज आ रही है हमारी? आकाश पवार जी, हमारी आवाज आ रही है? ऋषभ जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ ऋषभ जी। हाँ सर। आई एम द फर्स्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। आपका किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया? में थोड़ा थोड़ा रहता है सर। हाँ, तो आई एम द फर्स्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, और एंड रिमेनिंग पार्ट इज द कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट।
असाइनमेंट्स में आपको जहां बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको कीजिए, क्योंकि वो कॉलेज से मिला हुआ है। मैंने बताया कि एक्सेल शीट मिला हुआ है और वीकली वो मांग रहे हैं किसने असाइनमेंट दिया है नहीं दिया है, वो एमसीक्यू टेस्ट किसने दिया है नहीं दिया है, वो सारा रिकॉर्ड वहां पे चला जाता है। तो वी सर आर असाइनमेंट कब तक सबमिट करना पड़ेगा? 22 को मैंने दिया तो था, फर्स्ट असाइनमेंट का लास्ट डेट। अच्छा। एनी प्रॉब्लम फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट तो फिर आप बताइए, है ना। ये लेक्चर नोट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन पे, ठीक है सर। ये स्क्रीन आ गया असाइनमेंट नंबर 1, देखिए असाइनमेंट नंबर 1। हाँ सर। और यही लेक्चर नोट्स आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चेक चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये आपका है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो यही मैं आपको, ठीक सर। यही कंप्लीट आपको मैं सॉल्यूशंस दिया हुआ हूं, सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड like inventions, literary and artistic works, symbols, names, images and designs used in the commerce. Intellectual property right जो है, ये जो क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड के बारे में, क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड के बारे में आपको बता रहा है। ये इन्वेंशन के बारे में डील करता है, कोई आपने इन्वेंशन किया है उसके बारे में डील करता है। तो इन्वेंशन करना बहुत जरूरी चीज है, तभी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। इंटेलेक्चुअल इन्वेंशन करना बहुत जरूरी है। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेचर को लिखना तभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलेगा। आर्टिस्टिक वर्क में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलेगा। सैम्बल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द सैम्बल्स है, नेम्स है। बोलते हैं ना कि टाटा का है ये सैम्बल, टाटा का है, टाटा का ये जो है लगा हुआ है। मैंने तो कई, मैं दिल्ली में देखता हूँ कई एप्पल वाले को देखता हूँ, वो एप्पल कहीं से मंगाते हैं, है ना। और एप्पल मंगाया और उस पे जो है वो छोटे छोटे साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो निकाल करके मार्केट में ले जाते हैं। हमारे घर के बगल में बहुत सारा स्टोर लगा हुआ है ना। तो नेम्स एंड सिंबल मीनिंग रखता है। सिंबल्स, नेम्स है, इमेजेज है, ये मीनिंग रखता है। ये कहता है कि भाई हमारा जो एप्पल है ओरिजिनल है और बेस्ट है। इसकी उसका कहने का क्या मतलब है, सेंस है कि भाई इसकी रेट ज्यादा है ना। नेम, सिंबल्स, इमेज, ये प्राइस को डिसाइड करता है, ये मनी को डिसाइड करता है, ये जो है आपको लक्ष्मी को डिसाइड करता है। तो ये चीज जो है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। सिंबल्स के, कोई टाटा का सिंबल है, देखते हैं हर एक गाड़ी जो आपको निकलती है, फोर्ड की निकलती है तो फोर्ड का सिंबल लगा हुआ रहता है। वॉक्सवैगन का निकलता है उसका सिंबल लगा हुआ रहता है, नेम लिखा हुआ रहता है, किसकी गाड़ी है, किसका आइटम है, किसका प्रोडक्ट है। इमेज, इमेज भी आपका जो है प्रॉपर्टी राइट है। आप इमेज किसी का नहीं ले सकते। डिजाइन्स यूज्ड इन द कॉमर्स, डिजाइन्स जो यूज कर रहे हैं कॉमर्स में, आप डिजाइन दूसरे का यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी का मॉडल दूसरे गाड़ी के मॉडल से नहीं मिलता है, उसके सारे चीजें अलग रहती हैं, डिजाइन्स अलग रहता है। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है, ये ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है। दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक लड़का भी क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी लैंड हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है क्रिएशन बाय द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड उसको क्रिएट करेगा। तो ये आपको जब तक टैलेंटेड पर्सन नहीं रहेंगे तब तक हो ही नहीं सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है। एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है। पहला है आपको इंडस्ट्रियल कैटेगरी एंड दूसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में
क्या इंक्लूड होता है? पैटेंट्स, इन्वेंशन। मैंने कई बार आपको मैंने क्लास लेते वक्त कहा, पेटेंट करना, इन्वेंशन करना जरूरी है, तभी बिजनेस चलेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। इंडिया के बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो जाते हैं विदेश, जाते हैं विदेश से जाते हैं, वो सिंगापुर गए, कोरिया गए, वहां के मशीन उठा के ले आया, सारी चीजें वहां की हैं। फिर पता चला कि मशीन खराब हो गई, आप फिर कोरिया वाले को याद करो। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, मैं इंडस्ट्री में भी कई मैनेजर पोस्ट पे काम किया हूं, तो ऐसा हुआ है घटना। मशीन है साउथ कोरिया की, उसके कोई पार्ट्स का आपके खराब हो जाएंगे तो यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको वहीं से मंगाने पड़ेंगे, ओरिजिनल वहीं से मंगाना पड़ेंगे। इसीलिए बिजनेस के लिए पहले आपको पैटेंट चाहिए, इन्वेंशन चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। ट्रेडमार्क्स मैंने आपको बताया ना, ट्रेडमार्क्स है। ट्रेडमार्क्स जो है किसी बिजनेस का, ट्रेडमार्क्स को वो कहता है कि इस कंपनी का है। लक्स साबुन का नाम सुन लीजिए, बस वो बोलता है कि लक्स का मतलब है कि वो एक अच्छा साबुन है, वो ट्रेडमार्क है। यूनिलीवर का वो ट्रेडमार्क है। कितने साबुन आपने देखा होगा, अंबानी साहब ने भी लंच किया, क्या हो गया? साबुन बंद हो गया। कितने आए प्लेयर, गोदरेज ने भी लंच किया, क्या हुआ? साबुन बंद हो गया। कितने प्लेयर्स आए मार्केट में, बाबा रामदेव ने पतंजलि का लंच किया, अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो वो ट्रेडमार्क्स जो है वो मायने रखता है बिजनेस में। ये बिजनेस ट्रेडमार्क्स। हाँ बोलिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर 1 चल रहा है अभी। हैं? नंबर 1 बंद नहीं हो, नंबर 1 पतंजलि का। हाँ वही तो कह रहे हैं कि भाई पतंजलि, वैसे ये लोकल। हाँ पतंजलि का लोकल में आपका नंबर 1 चल रहा है, तो यूनिलीवर का लक्ष्य है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपको तो कह ही रहा हूँ कि दोनों में जो है चल रहा है। तो ट्रेडमार्क्स माने वो कहाँ हटा पाया है? हाँ पतंजलि नंबर 1 है, हम कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन आप हटा कहाँ पा रहे? यूनिलीवर को हटा कहाँ पा रहे? हाँ सर ये भी है। आप ट्रेडमार्क्स है वो। यूनिलीवर लंदन में उसका हेड ऑफिस लंदन है। लंदन में रह करके वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, ये क्या कम नहीं है? आप बताइए, आप इंडिया में रह करके इंडिया में सामान नहीं आप बेच पा रहे, लेकिन वो लंदन से जो है इंडिया में जो है बेच रहा, तो ये तो क्रेडिट उसी को जाएगी। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स जो है, आप अपना इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाइए, किसी चीज का डिजाइन का आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाइए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द सोर्स, ये मैंने कई बार बताया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बहुत मायने रखता है कि कहाँ का है। सिलिकॉन वैली नाम लेते ही बोलता है कि वर्ल्ड का जो है सेंटर है वो। बंगलुरु बोलता है, तुरंत बोलता है कि इंडिया का जो आईटी हब है वो बंगलुरु है कि नहीं? अहमदाबाद तो बोलता है भाई गुजरात का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है कि नहीं है? जमशेदपुर का मतलब है जो इंडियन इंडस्ट्री है आयरन की, वो इंडिया का यही है, जमशेदपुर है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मायने रखता है। ज्योग्राफिकल कहां पर कौन सा काम होता है, उसके सोर्स क्या है, कहां का प्रोडक्ट है, वो आपको मायने रखता है। वहां का सभी आदमी उस काम पर लगे होते हैं, ये उसका मायने रखता है। दूसरा है कॉपीराइट, विच इंक्लूड्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट में लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूड आता है। वो आपका नॉवेल्स है, नॉवेल्स, कई नॉवेल्स जो अच्छे नॉवेल्स हैं, आपने सुना होगा कि इस नॉवेल पे बेस्ड जो है पिक्चर बनी है। तो कई नॉवेल पहले जो है नॉवेल लिखा जाता है, नॉवेल को लिख करके फिर उसके बाद जो है वो पिक्चर बनती है, नॉवेल्स जो है। तो नॉवेल्स जो है वो कॉपीराइट होता है। कई पिक्चर का आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई इसी पे बना होगा। पोएम्स जो है, पोएम्स जो भी कविताएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, नोबेल प्राइज ले लिया, उसके बाद कहाँ कोई ले पाया, इंडिया में कोई नोबेल प्राइज नहीं ले पाया। तो गीतांजलि पढ़िए, फिर देखिए कि गीतांजलि में कितनी अच्छी
मैंने कई बार गीतांजलि पढ़ी है। वो लगता है कि उसमें कुछ स्पिरिचुअल टाइप का जो है चीजें लिखी हुई है गीतांजलि में, रवीन्द्रनाथ टैगोर का। तो वहां मैंने कई बार विजिट भी किया। तो वो लगता है कि हाँ कुछ उसमें है, तो पढ़ने के बाद ही आपको मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, प्लेज, अच्छी अच्छी फिल्में, म्यूजिकल वर्क से काफी पैसे आते हैं, वो सारा कॉपीराइट होता है। एक गाना जो बना लिया वो गाना कॉपी नहीं कर सकता है, दूसरे फिल्में वाले कॉपी नहीं कर सकते उस गाना का, म्यूजिकल वर्क का कॉपी नहीं कर सकते। आर्टिस्टिक वर्क सच ए ड्राइंग, इंडस्ट्री की जितने भी ड्राइंग्स है आप कॉपी नहीं कर सकते। पेंटिंग, अच्छी अच्छी पेंटिंग जो देख करके कुछ इम्पैक्ट लाता है। कई पेंटिंग का सुना होगा आपने कि उसकी कई कीमत होते हैं, काफी ज्यादा कीमत होते हैं। तो पेंटिंग्स जो है उसके, फोटोग्राफ्स के भी काफी कीमत होता है, पेंटिंग्स के भी काफी कीमत होते हैं, कई पेंटिंग्स के काफी कीमत होते हैं पे जो है। तो स्कल्पचर्स एंड आर्टिफिशियल डिजाइन्स है ना, तो ये सारे कॉपीराइट हैं। ये कॉपीराइट का यही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ही यही हुआ। राइट्स रिलेटेड टू द कॉपीराइट इंक्लूड दोज परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक इन देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक जो परफॉर्मेंस में आपको वो कर रहा है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द फोनोग्राम्स, जो फोनोग्राम का प्रोड्यूसर्स है, ऑफ देयर रिकॉर्डिंग्स, एंड दोज ऑफ द ब्रॉडकास्ट इन देयर रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। जो ब्रॉडकास्ट का जो था, रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम का जो ब्रॉडकास्ट होता है, उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ जी ने बनाया, आप उसका कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइट है। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये ब्रॉडकास्ट, रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम, ये सारे जो है बना सकते हैं। बताइए क्या? आपने अभी बोला कौन बनेगा करोड़, हाँ बताइए। आपने अभी बोला कौन बनेगा करोड़पति कर सकते हैं। हाँ, अमिताभ जी ने बनाया है ना कौन बनेगा करोड़पति, तो वो कॉपी आप नहीं कर सकते। उसके फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में करना पड़ेगा, दूसरे नाम देना पड़ेगा, दूसरा सब चीज करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आई नहीं आई? आपको दूसरा, आप कई क्विज आते हैं आपके टीवी चैनल पे, है ना? कई क्विजेज आते हैं, क्विज आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आप कॉपी बिल्कुल उस तरह का नहीं कर सकते हैं। ये सारे ब्रॉडकास्ट, रेडियो में, टेलीविजन में, प्रोड्यूसर्स ऑफ द फोनोग्राम्स इन रिकॉर्डिंग्स, ये सारे जो है कॉपीराइट होते हैं। बात को समझिए। आप जो एक फिल्म का जो म्यूजिक जो आपके A.R. रहमान साहब ने दिया था, वो म्यूजिक आप फिल्म में नहीं रख सकते, दोबारा नहीं रख सकते। तो ये देखिए, आपको साफ लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ द फोनोग्राम्स इन देयर रिकॉर्डिंग्स। वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उससे मनी गेन होता है। मनी गेन का जहां पे प्रश्न आता है, वहां पे वो कॉपीराइट हो जाता है। तो ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है। म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ये सारे कॉपीराइट है ना। फिल्म्स, एक फिल्म जो आपने बना लिया, उस फिल्म की बनाता भी तो उसके प्रोड्यूसर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पार्ट 2 करना पड़ता है। कोई फिल्म ज्यादा चल जाता है ना, तो वो कहता है भाई पार्ट 1, पार्ट 2। शोले पार्ट 1 बना था, शोले पार्ट 2 बनेगा। शोले पार्ट 1 बना था, शोले पार्ट 2 बनेगा, ऐसा बोलना पड़ता है। शोले पार्ट 1 बना था, शोले पार्ट 2 बनेगा। तो ये सारे कॉपीराइट है, आप कॉपी नहीं कर सकते। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स। ये जो क्रिएट करता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। गिविंग देम प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देयर क्रिएशंस, उसको प्रॉपर्टी राइट देता है ओवर देयर क्रिएशंस। द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी however is that intellectual property is intangible, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब है
लैंड आपका टेंजेबल प्रॉपर्टी हो गया। ये तो क्रिएट किया है, ह्यूमन ने क्रिएट किया है, तो जो भी आदमी क्रिएट करेगा ये ह्यूमन का क्रिएशन है, तो ये इंटेंजेबल प्रॉपर्टी है ना। दैट इज इट कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स फिजिकल पैरामीटर। इसके फिजिकल पैरामीटर नहीं है, इसके फिजिकल पैरामीटर नहीं है। कोई इन्वेंशन किया है, कोई नई चीज बनाया है, तो इसका अपना अलग इसका प्रॉपर्टी है। इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम डिस्क्रिमिनेबल वे टू प्रोटेक्टेबल, है ना। इसको कुछ प्रोटेक्टेबल वे में आपको करना पड़ेगा। जनरली इट इनकम्पोसेस 4 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेबल प्रोजेबिलिटी। जो आपको डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो आपको बता रहे हैं वो है पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सेक्रेट। ट्रेड सेक्रेट बहुत मायने रखता है। ट्रेड सेक्रेट मैंने कई च्यवनप्राश खाइए, आप देखिएगा जो डाबर का च्यवनप्राश है, बैद्यनाथ का च्यवनप्राश है, कभी नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेगा। डाबर की इंडस्ट्री है साहिबाबाद में, मैं वहां पर गया था, तो वहां का जो ओनर है, जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो किसी को मिलाने नहीं देता है। ये आपको ट्रेड सीक्रेट है। इंडस्ट्री चल रही है, सारा चीज का वो आ रहा है, आदमी आ रहा है जा रहा है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स उसमें आपको च्यवनप्राश में है, वो मालिक खुद मिलाता है, जो उसके ओनर होते हैं खुद मिलाता है। आप च्यवनप्राश बनाइए, आप डाबर का च्यवनप्राश नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये आपको ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट बहुत जरूरी है। कोका कोला, आप कोका कोला बना ही नहीं पाएंगे। कोका कोला यूएसए की कंपनी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड राज कर रही है। वो जो कहता है भाई ये सिरप यहां से ले जाओ और तुम जो है आप अपना ये सिरप बनाने के लिए बोलते हैं, तुम उसमें डालो और उसको बनाओ, ये ट्रेड सीक्रेट है। अब आप उसको कोका कोला क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। ट्रेड सीक्रेट जरूरी है। ट्रेड सीक्रेट ये बिजनेस के लिए जरूरी है। ट्रेड सीक्रेट जरूरी है। ट्रेड सीक्रेट के ये ट्रेड सीक्रेट को ही तो बोलता है कि कोई भी बिजनेस जो है आपको जनरेशन टू जनरेशन आपको वैरी करता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है। तो ये ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट जो क्रिएट किया वो बताता ही नहीं है, दूसरे को बताता ही नहीं है, ट्रेड सीक्रेट है। तो इंडस्ट्री का ये ट्रेड सीक्रेट है। कोका कोला मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बताया ट्रेड सीक्रेट का, है कि नहीं। तो ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट आप किसी चीज का ले लीजिए, 10 साल 20 साल का टाइम फ्रेम है। 20 साल का टाइम फ्रेम में ना तो कोई उसको बना सकता है, ना तो कोई उसको बेच सकता है, ना तो कोई उसको यूज कर सकता है बिना आपके परमिशन के। ये आपको कॉपीराइट जो है आपको पावर देता है ना। तो दीज आपको रिफर टू एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिजनेस का करने का मतलब है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा। मैं बार बार आपको ये चीज दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको लॉ में भी पढ़ाया जाता है, आपको बीबीए में भी पढ़ाया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको एमबीए में भी पढ़ाया जाता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसका सभी सब्जेक्ट में आपको बताया। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इतने सारे एरिया दिए हुए हैं, सभी एरिया में आपको कहीं पे इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये जो वर्ल्ड का जो ट्रेड चल रहा है वो आपको कॉपीराइट पे चल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे चल रहा है। तो ये सभी डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बिना बिजनेस आप करना सक्सेस नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, the scope and definition of intellectual property is constantly evolving with the inclusion of newer forms under the gambit of the intellectual property. In recent times, geographical indication, protection of the plant varieties, protection for semiconductor integrated circuit, and undisclosed information have been brought under the umbrella of the intellectual property. जो मैंने आर्टिकल 1970 की बात की थी, आर्टिकल 1970 में
आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं था उसमें, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी उसमें नहीं था, प्रोटेक्शन फॉर द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं था उसमें। ये आपको अमेंडमेंट हुआ है 1999 में, तो उसमें आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लाया गया है, और 2000 में, 2002 में, 2005 में, तो ये सारे रिसेंट टाइम में इनको जो है इंक्लूड किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी मैंने आपको बताया कि इसमें फार्मर्स राइट प्लांट एक्ट में, जिससे मैंने लेक्चर ही शुरू किया था आपको फार्मर्स एक्ट प्लांट वेराइटी में, तो ये उसमें आपको रिसेंटली जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जो है इसको लाया गया है। तो concept of the intellectual property is not new, as a residence Northern Italy is thought to be the cradle of the intellectual property right system, है ना। तो ये पहले आपको सबसे पहला जो आपको यहाँ पर हुआ था, a Vatican law of 1474 made by the first system attempt to protect invention by form of a patent, which granted an exclusive right to an individual for the first time. In the same century, the invention of the movable type and the printing press by Johannes Gutenberg 1450 contributed the origin of the first copyright system in the world. Printing press, सबसे पहला आपको प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो है आपका जोहान्स गुटेनबर्ग का 1450 में सबसे पहला फर्स्ट कॉपीराइट है, और वेटिकन लॉ ये सबसे पहला जो है आपको प्रॉपर्टी राइट है। Towards the end of the 19th century, new inventive ways of manufacture helped the trigger large-scale industrialization accompanied by the rapid growth of the city, expansion of railway networks, the investment of capital and growing transoceanic trade, new ideas of industrialism, the emergence of a stronger centralized government and nationalism led many countries to हाँ बोलिए अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ अटेंडेंस आपका ले लेते हैं। 9 मिनट रह गए। अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस आपका ले लेते हैं, अटेंडेंस पहले आपका ले लेते हैं। आकाश पवार जी 03, चंदन शाह जी 8, हिमांशु जी 17, कार्तिक प्रासर जी, कौशल जी 25, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 18, हृदय जी 19, सर 41 शेखर 41 है। हाँ 41 शेखर जी का हो तो गया, 41 शेखर जी हो तो गया। 18 बोल रहे थे सर आप। मैं फिर से दोबारा आपको अटेंडेंस बता देता हूं। हृदय जी 19, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, कौशल जी 25, कार्तिक प्रासर जी, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, आकाश पवार जी 3। ये 8 पार्टिसिपेंट्स आपको आज आपको आए हुए हैं, एंड वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड वी स्टार्ट फॉर द असाइनमेंट, सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट, है ना। तो ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एट द पॉइंट टाइम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्टार्टेड टू टेक शेप, सेटिंग ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन 1883 में हुआ था, है ना। एंड देन बर्ने कन्वेंशन।
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क इन 1886। बर्ने कन्वेंशन 1886 में हुआ था। बर्ने कन्वेंशन के बारे में डिटेल से आपको क्या क्या हुआ था, पेरिस कन्वेंशन में क्या क्या हुआ था, उसमें आपको डिटेल से मैंने आपको बताया कि बर्ने कन्वेंशन में क्या हुआ था, पेरिस कन्वेंशन में क्या हुआ था। यहाँ से सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कहानी आपको यहाँ से शुरू होती है 1474 से 1450 से प्रिंटिंग प्रेस की कहानी से वहां से शुरू होता है। फिर आपको जो आपका प्रॉपर्टी राइट है ना, तो ये आपको बर्ने कन्वेंशन वहां से आपको शुरू होती है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम particularly contemporary corporate paradigm areas have increasingly important parts. Most of the value of the high technology products and new medicines बहुत जरूरी है। न्यू मेडिसिन्स जितने भी आते हैं lie in the amount of the innovation, research, design and testing involved. टेस्टिंग करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है, तब न्यू मेडिसिन आता है। कोरोना का मेडिसिन देख रहे हैं, 21 मार्च को कोरोना हुआ था और अभी तक आज हमारा अक्टूबर आ गया, मेडिसिन वैक्सीन सभी सही क्लियर नहीं है। रसिया ने क्लेम किया हुआ है, रसिया कह रहा है कि वैक्सीन बनाई हुई है, और ऑक्सफोर्ड भी कह रहा है कि उसकी ट्रायल चल रही है, सबकी ट्रायल चल रही है। अभी ऑक्सफोर्ड भी कह रहा है कि उन्होंने बना लिया है, ट्रायल चल रही है। तो उसमें ये सारे आपको ट्रायल चलते रहते हैं, है ना। फिल्म्स, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, बुक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना, ये सारे। The convention establishing the World Intellectual Property Organization WIPO जो है ये मेन प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन का आपको आइडिया देता है। सारा चीजें वहां पे आपको मिल जाएगा, उनके वेबसाइट पे जाइए, आपको वर्ल्ड के सारा चीजें इसको मिल जाएगी। जो लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रोटेक्टेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारा आपको दिया हुआ है। लिटरेरी, ये सारे आपको 8 उसमें दिए हुए हैं क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स, परफॉर्मेंस ऑफ द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट, है ना। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, कई आर्टिस्ट हैं उनके काफी जो कहता है कि भाई इसके प्राइस हैं, परफॉर्मर है, तो वो इसी के कारण है कि वो कॉपीराइट है, वो फोनोग्राम्स है, आप उसके कॉपी नहीं कर सकते। ये इसका गाना है तो वही गाएगा, आप कॉपी नहीं कर सकते। इन्वेंशन, ऑल फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, ये जो इन्वेंशन है, साइंटिफिक डिस्कवरीज है, साइंटिफिक डिस्कवरी जितने भी हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स है, वो सारे कॉपीराइट हैं। आप फोर्ड का गाड़ी खोल करके फोर्ड नहीं बना सकते हैं, वो फोर्ड ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि फोर्ड का गाड़ी महिंद्रा खोल लिया, महिंद्रा साहब ने खोल लिया, उनको कहा कि भैया हम उनके गाड़ी को हमने बना दिया, नहीं कर सकते ऐसा। इंडस्ट्रियल डिजाइन है, वो सारे डिजाइन उसके कॉपीराइट हैं, है ना। तो ये नहीं कर सकते। साइंटिफिक डिस्कवरीज है, ट्रेडमार्क्स है, सर्विस मार्क्स है, कमर्शियल नेम्स एंड डिजाइनेशंस है। कमर्शियल नेम्स भी वो कॉपी नहीं कर सकते, डिजाइनेशन कॉपी नहीं कर सकते, सर्विस मार्क कॉपी नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर अनफेयर कंपटीशंस, all other rights resulting from intellectual activity in industrial, scientific, literary and artistic fields, ये सारे कॉपीराइट है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंडस्ट्री का। इसीलिए तो वो नहीं चल पा रहा है। इंडियन सेमी जो आपका दिल्ली, गुड़गांव में, जितने एनसीआर में, मैं सारे जगह बहुत इंडस्ट्री में गया हुआ हूँ। मुंजा, लोटस हुआ, कई इंडस्ट्री में मैं विजिट किया हूँ, गया हुआ हूँ। ये क्या है कि ये वेंडर्स हैं, ये होंडा कंपनी का क्या बना के देना है, होंडा से ये ऑर्डर लेते हैं। तो होंडा इसको ऑर्डर देगा तभी तो ये बनाएगा, नहीं ऑर्डर दिया नहीं बनेगा इसका माल। होंडा गाड़ी बिक नहीं रही, उसने ऑर्डर देना कम कर दिया जी, नई गाड़ी नहीं बिक रही। तो इनका खुद का पेटेंट नहीं है ना, खुद का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मारुति के सब वेंडर्स हैं, मारुति के करीब 800-900 वेंडर्स हैं। तो वो मारुति ऑर्डर देगा तो बनाएगा, नहीं ऑर्डर दिया वो बैठा रहेगा वो। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है सारा कॉपीराइट है वो।
आप कर ही नहीं सकते। स्कर्ट के वेंडर है, स्कर्ट्स ऑर्डर देगा तभी तो आप करेंगे, कहाँ से करेंगे? वो नहीं ऑर्डर मिला तो वो बैठे हुए हैं सारे जो है। होंडा होंडा हो गई, मारुति हो गई, ये सारी बाहर की कंपनियां हैं सारी जो है। तो इसीलिए वो साइंटिफिक एंड लिटरेरी और द आर्टिस्टिक फील्ड, ये सारा जो है आपको कॉपीराइट है ना। तो with the establishment of the World Trade Organization, the importance and role of the intellectual property protection has been characterized in the trade-related intellectual property TRIPS agreement. TRIPS agreement के बारे में वो कह रहे थे, कार्तिक प्रासर जी एक दिन सवाल किए थे भाई ट्रिप्स क्या है, तो यही देखिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है वो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एग्रीमेंट वही क्रिस्टलाइज करता है, वही सारा करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। The importance and role of the intellectual property protection has been crystallized in the TRIPS agreement. It was negotiated at the end of the Uruguay round हुआ था और गेट ट्रेडी हुई थी 1984 में, तब आपका जो है ये नेगोशिएट हुआ था, है ना। जो डिफरेंट मीटिंग होती है कंट्री की, सार्क मीटिंग होती है, सार्क मीटिंग में भी यही होता है, वहां पे प्रॉपर्टी राइट का आदान प्रदान होता है। जर्मन के चांसलर इंडिया आए हुए थे, एंजेला मार्केल, तो यहाँ पर आकर के वही साइन करते हैं कि भाई हमारा यहाँ से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये चीजें ये ट्रांसफर होगा, और ये सारी चीजें वही साइन होता है। तो यही सारी एग्रीमेंट होती है। तो इसी सारे का both in national and international level, it addresses applicability of GATT principle as well as provision in international agreement of intellectual property. It establishes standard for availability, scope, enforcement, acquisition and maintenance intellectual property rights. Furthermore, it addresses related dispute prevention and settlement mechanism. Formal provisions are addressed in part 6 and 7 of the agreement, which cover transitional and institutional arrangement respectively, है ना। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कह रहे थे कार्तिक प्रासर जी एक दिन कह रहे थे, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1995 में आया था, इज टू डेट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा आपको एग्रीमेंट था। द एरिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट कवर्स, ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्स कर रहे हैं ये सारे 7 उसमें इशू आपको दिया हुआ है। कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, द राइट्स ऑफ द परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडमार्क्स इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, geographical indication including appellation of the origins, industrial designs, patent including protection of the new varieties of the plants. New varieties of the plants वो भी आपका पेटेंट है। पहले जो आपका धान हुआ करता था ना, तो धान से एक ही फसल होता था। अभी पूसा ने अब रेडी किया है और अब मार्केट में भी मिल रहा है, एक धान से 5 पेड़ निकल जाते हैं, है ना। तो ये नया वैरायटी बनाता है। ये आपका दिल्ली में जो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो इसी के लिए है, पूसा एग्रीकल्चर, वो नए वैरायटी प्लांट्स के बनाते रहते हैं। तो उसी से जो है सभी चीज का, एक धान से 5-6 पेड़ निकल जाते हैं एक साथ। तो एक तो फायदा है कि भाई 5-6 एक साथ निकल गए, दूसरा कि भाई आपका बीज भी कम लग रहा। तो ये इस तरह के न्यू वैरायटी आपको वो बनाते हैं। द लेआउट ऑफ डिजाइन्स ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, नए आईसी आते हैं, डेली देखते हैं कि आपका मोबाइल में चेंजिंग आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंजिंग आ रहा है, तो कहाँ टिक पाता है वो। आप देख रहे हैं मोबाइल में डेली कितने मोबाइल्स आ रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं। टच मोबाइल कितना जो है रेट भी उसका इधर उधर होता रहता है। इंटीग्रेटेड सर्किट डेली आता रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। द अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेस्ट सेक्रेट एंड टेस्ट डाटा, है ना।
ट्रेड सीक्रेट है, टेस्ट डाटा है, तो लेआउट डिजाइन है, टोपोग्राफी ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो लेआउट ऑफ डिजाइन, ये सारा आपको कॉपीराइट है। आप किसी का मोबाइल जो है, आप जो है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल खोल लिया, उसमें जो जो चार चीजें लगे हैं वो देख लिया फिर उसको बना दिया, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये सारे कॉपीराइट है उसके, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। तो अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द टेस्ट सीक्रेट, टेस्ट डाटा, ये आप नहीं कर सकते। Intellectual property right refers to the creation of mind, inventions, literary and artistic work, symbols, names, image, designs used in commerce. ये सारे intellectual property right refers to the creation of mind, inventions, literary and artistic work पे आपको आता है, symbols में आता है, images में आता है, designs में used in commerce, ये सारे आपको intellectual property right है। तो अब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ बताइए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। टाइम हो गया, 40-45 मिनट हो गए। अच्छा 40 मिनट हो गए, हाँ तो इंड कर देते हैं, है ना, इंड कर देते हैं जो है।